Hello dear students, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In today's class we will study power. In the last class we already did kinetic energy, potential energy, and now we are going to start with power. Okay, so let's start. So first, the definition of power. See what it is. Rate of consumption of energy. Rate of consumption of energy. Now what is the meaning of this rate? रेट का मतलब क्या होता है? देखो, जहां पे भी वर्ड रेट आ जाता है ना, जहां पे भी रेट आ जाता है वहां पे आप डिवाइड बाय टी कर दो, डिवाइड बाय टाइम कर दो। जहां पे भी रेट आ जाए वहां डिवाइड बाय टाइम कर दो, खत्म। ओके, सो रेट इज नथिंग बट कंजम्पशन डिवाइड बाय टाइम। एंड किस चीज को डिवाइड बाय टाइम करना है? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को। यानी कि अगर आप एनर्जी अपॉन टाइम करेंगे तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी डेफिनेशन देखो, अगेन रेट। रेट मीन्स डिवाइड बाय टाइम। किस चीज का रेट? ऑफ डूइंग वर्क, वर्क का रेट। तो पावर की डेफिनेशन अगर हम निकालना पावर की फॉर्मूला निकालना चाहें डेफिनेशन से, तो व्हाट इट वुड बी? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम, राइट? तो ये हो गया। नेक्स्ट, एसआई यूनिट। तो पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, WATT वॉट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ओके, नेक्स्ट अदर यूनिट इज, now see for calculating other unit, we know that the unit of work done is joule, we know that the unit of time is second, SI unit, so the SI unit for power will be joule per second। तो ये भी एक दूसरी यूनिट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। नाउ कमिंग टू कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? दैट व्हाट unit of energy is being used for commercial purpose, right? For example, see क्या होता है, जूल जो है, जूल is a very small value, very small value, बहुत छोटी वैल्यू होती है जूल की, बहुत छोटी। अब आप ये सोचिए, यहाँ पे देखिए इतना छोटी वैल्यू है। We use so many appliances in our daily life. We use AC, we use fridge, सर्दियाँ है तो we use geyser, we use fridge, microwave oven, dishwasher, steamer, induction, hot induction plate. So these kind of things we use like every day, हर दिन इनको हम use करते हैं। टीवी, राइट? तो ये सब यूज हो रहा है। तो जूल में, क्योंकि जूल बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, तो इस कारण से हम जो इतना सारा कुछ यूज कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस, दैट वैल्यू बिकम्स सो लार्ज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कैलकुलेशन। बहुत लार्ज वैल्यू हो जाती है जूल के टर्म्स में, क्योंकि जूल अपने आप में बहुत छोटी क्वांटिटी है और हम जो एनर्जी यूज करते हैं, वी यूज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ डे, राइट? तो अब जूल में वो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है ना। वो वैल्यू जूल में एक दिन के लिए आई है। सपोज फॉर एग्जाम्पल द आंसर कम्स आउट टू बी, सपोज इफ यू यूज 1,44,324 joules of energy in a day. In a day, can you imagine this? In a day. So what will happen if we have to calculate your electricity bill, right? So what will happen? We have to multiply this by 30, 144,324 into 30, and now what will be the bill? Will be based on cost per joule. So if cost per joule is ₹5, एक जूल का अगर ₹5 है, then you have to multiply this by 5 also, and this will give such a large value, correct? So that is why what we did, we used a greater unit,
we used a greater unit which is kilowatt hour. Now what happens with kilowatt hour, that 1 kilowatt hour means you have considered 3.6 into 10 to the power 6 joules. Can you understand the meaning of 3.6 into 10 to the power 6 joules? If not, then see. So it is 36 with 5 zeros. Correct? So you can say that 36 lakhs. So 36 lakhs of joule, okay, is equal to 1 kilowatt hour. So group of 36 lakh of joule formed 1 kilowatt hour. Now this value has become very small. बहुत छोटी हो गई है ये वैल्यू. तो कैलकुलेशन इज feasible. It is easy to calculate such a value. तो इस कारण से क्योंकि जूल बहुत ही छोटी यूनिट है, so we used a bit bigger value. For that we used a new unit which is kilowatt hour. आया कहाँ से है? यहीं से. Power is equal to energy upon time से. सी कैसे आया है? सी power is equal to energy upon time. Correct? We know that SI unit of energy is joule. Okay, leave it. If I calculate the unit of power as kilowatt, then the unit of time will be in hours. This hour, if I send it here, the unit of energy becomes kilowatt hour. Isn't it? Kilowatt hour. Then this is your answer. This is the unit of energy that we are using. Kilowatt hour. यहीं से आया है. मेन फॉर्मूले से. Power is equal to energy upon time से आया है. Nothing new. Correct? Okay. So now ये आपके पास आ गया है. अब हम चलते हैं सीधा पावर कैलकुलेट करने पे. ओके, सो जस्ट अ सेकेंड. ओके, so now we will calculate power in this question. See how to calculate it. See, the question says a car changes its speed from 36 km per hour to 90 km per hour in 40 seconds. Okay, calculate power consumed if mass is 500 kg. So given things I have already underlined. Question पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि कार चल रही है. If car is moving, then which kind of energy? Kinetic energy. Kinetic energy क्या होती है? जो उस ऑब्जेक्ट पे लगती है जो कि मूव कर रहा है. If it is moving horizontally anywhere on the earth, it has kinetic energy. Or even in the case of free fall also, the object has kinetic energy. So if the object is moving, there is kinetic energy. So this car is moving, so it has kinetic energy, no doubts. Now, as we can see, 36 से 90 हुआ है, तो u initial velocity is 36 km per hour and final velocity is 90 km per hour. Mass is 500 kg. फर्स्ट थिंग इज टू चेंज द यूनिट्स. हम गिवन लिखते ही इसलिए ताकि हमें यूनिट समझ में आए. सो यूनिट 36 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे, यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड. कैसे चेंज करेंगे? 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 90 व्हेन यू विल चेंज, यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड. कोई डाउट तो नहीं है ना ये कैसे आया? चेक कर लो. 90 इंटू 5/18, 18 5s are 90. So 5 5s are 25. So it's very easy, nothing very tough. And now we have to calculate power. Power is what? Energy upon time. यहाँ कौन सी एनर्जी लग रही है?
वी कैन सी यहाँ काइनेटिक एनर्जी लग रही है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² अपॉन में t तो है ही, v² भी नहीं, v² माइनस u². ओके, नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइनली कैलकुलेट द आंसर. हाफ मास कितना है 500, v² दैट मीन्स 25 का स्क्वायर 625 माइनस u², 10 का स्क्वायर मतलब 100. Let us cancel it. 250 कितना आया 525. Now you have to multiply it 0. Okay, so 25 5s are 125, carry 12, 25 2s are 50 plus 12 62, carry 6, 25 5s are 125, 125 and 6 131, and this is what the power comes out to be 1,31,250 joules. See is what, see कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है क्योंकि हम जूल में कंसिडर कर रहे हैं. यही अगर आप किलोवाट आवर में करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी. इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको किलोवाट आवर में भी करके निकालने का प्रोसेस बता देती हूँ. ओके, सो नाउ यहाँ पे गिवन डेटा हमने ऑलरेडी लिख लिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले. अब मैं आपको बता रही हूँ पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें अक्सर समझ में नहीं आता है हाउ टू कैलकुलेट इट और हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट. सो सी जैसे मीटर को किलोमीटर में करते हैं वैसे ही आपको वॉट को किलोवाट में करना है. तो देखिए यहाँ पे ये वॉट में डेटा है. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. तो इसी को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो किलोवाट में आ जाएगा. सो इट इज. अब देखिए यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि पहले इसे 5 से आप कैंसिल करें और फिर आप इसे डिवाइड करें. और ये मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले इसे कैंसिल करते हैं एंड देन दे डिवाइड इट. सो देयर इज नो यूज. आप वही चीज़ कर रहे हैं. उसको कैंसिल अगर आप कर ही देंगे, ये जो दो नीचे जीरोज आए हैं ये दो जीरोज बहुत ही प्रीशियस होते हैं. दो क्या कितने भी जीरोज अगर डिनोमिनेटर में जीरो है ना, दे आर वेरी प्रीशियस. डू नॉट कैंसिल देम एवर. कभी उसको कैंसिल मत करो. हमेशा रखो कि अगर डेसिमल लगाना पड़े सो दे विल हेल्प रादर देन मल्टीप्लाइंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन, डिवाइडिंग देन अगेन कैंसिलिंग एंड देन डिवाइडिंग. तो कोई पॉइंट नहीं है उसका. तो यहाँ पे 2 0 यानी 131.25 किलोवाट. That's it. This is the power in kilowatt. Suppose if questions come, there is a question in your NCERT that convert 250 units of energy in joules. अब ये क्वेश्चन ना पेपर में आता है, एक बार आया स्कूल के पेपर में. एंड द स्टूडेंट्स ट्राइड एवरीथिंग. उन्होंने हर चीज़ ट्राई कर ली. उन्होंने सोचा इतना सिंपल क्वेश्चन तो मतलब क्या पूछेंगे, है ना, कुछ है ही नहीं इसमें. आपको पता है कि यूनिट मतलब किलोवाट आवर, यूनिट मतलब किलोवाट आवर. तो अगर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, तो 250 यूनिट्स कितना होगा. ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली. दिस क्वेश्चन केम इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास दे लूज 3 मार्क्स. 3 नंबर उनके चले गए. क्यों? बिकॉज उन्होंने इतना उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं कहाँ से क्या क्या लॉजिक लगाया. नो पॉइंट एट ऑल. सो आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं एग्जाम में आएगा तो डिफिकल्ट ही आएगा. आपको दिमाग में रखना है कि कुछ भी आए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो सी यहाँ पे क्या है, यूनिट मतलब होता है किलोवाट आवर. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ joules. So what will be the value for 250 units? It will be equal to 250 into
3.6 into 10 to the power 6 joules. Now remove the decimal, cancel it, multiply it. 25 6 are 150, carry 15, 25 3 are 75 and 15 90, 6 joules. So you can say that 9 into 10 to the power 8 joules is the answer, right? So this is how you have to solve the question of power. एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एक और है, एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पावर का. उसमें है कुछ डेटा, तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है, तो मैं आपको डेटा देती हूँ. बट क्वेश्चन सेज दैट देयर आर 2 गर्ल्स ए एंड बी एंड बोथ द गर्ल्स आर क्लाइंबिंग ऑन अ रोप. एक रोप पे वो क्लाइंब कर रही हैं. थोड़ी मेरी लड़कियां ज़्यादा ही सुंदर है ना. एनीवेज, सो रोप पे वो क्लाइंब कर रही हैं. नाउ सी, इनकी जो हाइट है ग्राउंड से, वो कुछ गिवन है क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 50 मीटर्स एंड 40 मीटर्स. ओके, mass of both the girls were given. This girl has mass given, the weight given, the weight. This girl has the weight of 40 Newton and this girl has the weight of, let us say, 60 Newton. Okay, and you have to calculate power in 40 seconds in both. Suppose I'm just assuming the values. क्वेश्चन यही था, सेम क्वेश्चन यही था, वैल्यूज डिफरेंट थी. नाउ सी, इस क्वेश्चन में भी क्या है, जैसा कि हमको दिख रहा है ए. चलो पहले ए की बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट बी. सो हमें क्या दिख रहा है, वेट कितना है, 40 न्यूटन. अब इस वेट का क्या करें, आधे लोगों की समस्या. भाई वेट का मतलब क्या होता है, m इंटू जी. इट इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन दी बॉडी, m इंटू जी. करेक्ट, ये दिया आपको 40 न्यूटन. अब कुछ बच्चों की गलती तो और भी ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं दे लिटरली कॉम्प्लिकेट दिस कैलकुलेशन सो मच. वो यहाँ पे 9.8 लगा के मास निकालते हैं एंड देन वहां से जो मास आता है, देन अगेन उसको जी से मल्टीप्लाई करके, एच से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. नो पॉइंट. एम जी की वैल्यू आपको गिवन है, छोड़ दो इसको एज इट इज. एच आपको पता है 50 मीटर, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh. हमें पता है पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी mgh अपॉन टी. mg की वैल्यू हमें पता है 40, h की वैल्यू पता है 50, टाइम मालूम है 40. कैलकुलेटेड, व्हाट इज इट, 50 वॉट. कोई प्रॉब्लम. ये देखो ना, आपने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो होती है बच्चों की, वो ये होती है, वो यहाँ पे पहले G10 लगा के या 9.8 लगा के, कुछ भी लगा के, दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास टू बी 4 kg और 3 point something kg, वहां से निकाल लेते हैं. और फिर अगले ही स्टेप में दे अगेन मल्टीप्लाई दी 4 by 10 बिकॉज m into G, अगेन दे कम टू 40. तो ये गोल गोल घुमाने की उसको कोई नीड है ही नहीं, देयर इज नो नीड एट ऑल. ओके, सो ये हो गया. अब बी पे आ जाते हैं. सिमिलरली वेट इज 60 न्यूटन, दैट मीन्स m इंटू जी इज गिवन टू बी 60 न्यूटन एंड हाइट इज गिवन टू बी 40 मीटर. वी नो दैट पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, सो mgh अपॉन t. The value of mg is given in the question 60, h is given to be 40, time is given to be again 40. 40 cancel, the answer is 60 watt. Done. Right? So this is how you have to calculate power. कोई भी एनर्जी आ सकती है, may it be work done भी आपको निकालना पड़ सकता है. तो कुछ भी आए, आपको खाली एनर्जी वर्क डन जो आपने पढ़ा है उससे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एक बार वो वैल्यू कैलकुलेट हो गई, डिवाइडेड बाय टाइम एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. So yes, this is it for today's class. In the next class, we will see law of conservation of energy. That is also a very important topic. The proof is like really very, very important.
So we will see that in the next class, and till then take care. Bye bye.